Good evening, dear ladies and gentlemen, my dear colleagues, our esteemed guest faculty, Sheetal Shadaji. I welcome you, my other colleagues and friends. It is my great honor and pleasure to welcome you for this ninth online module of Self-Empowerment Program. The Self-Empowerment Program is our central presidential program of Indian Fertility Society, and this program is exclusively dedicated to rediscover oneself and regenerate mind, body, and soul. So it is my pleasure and anticipation that I welcome you in today's enlightening session that is on stress management through Kundalini awakening. We know that in this fast moving world, stress has almost become ubiquitous with everyone. As we navigate through our responsibilities of work at home, balancing with family life and personal aspirations, it is very easily we get overwhelmed. So this journey of self-discovery is very important for our inner peace, and that is precisely we are here to explore today. So I will start with the program. I would like to thank our president, Dr. Pankaj Talwar, and our secretary, Dr. Shweta Mittal, for the support of this program, as well as our national coordinator, Dr. Bharti Dhore Patil, madam, who is always there to support us. So with that, I would like to invite Vice President, our National Vice President of Indian Fertility Society, Dr. Ritu Khanna. Dr. Ritu Khanna, madam, is with us. She is director of Khanna Medical Center at Varanasi. And she is National Vice President of Indian Fertility Society as well as Vice President of Varanasi OBGY Society. And she has received the prestigious Dr. B.C. Rai Memorial Award as well as the Presidential Award and has many publications to her credit. I invite you, Dr. Ritu Khanna. Welcome, Dr. Ritu. Can you hear me? Yes, now I can hear you. I was muted. Uh, Thank you so much, Dr. Leena, and a very good evening to everyone. Welcome all of you on behalf of the Indian Fertility Society, an organization which really excels in academics but also cares for the women's health. Today, understanding the transformative power of yoga in women's life, this program has been specially designed, and it's a great privilege for us to have this ninth online module today on the self-empowerment program. We are really thankful to our dynamic team headed by the national coordinator, Dr. Bharti Dhore Patil, and Dr. Rajvi Mehta and Dr. Leena Badwa, who've done a fantastic job and keep carrying on the sessions on the self-empowerment. And we are also happy to have Ms. Sheetal Sada, the yoga trainer, Mahayogdham. And I think yoga is not just about physical fitness, but really lays the foundation of self-realization. And by focusing inwards, the women can discover the inner capabilities. And I think that this self awareness helps them let go of so many of the social pressures. And I think today that this is the most awaited program and it's really going to be beneficial to us. So all the good wishes for a well going program today, and I think we're going to learn so much and put it into our daily lives. Thank you so much, and over to Dr. Leena. Yeah, thank you, Dr. Ritu. I would like to invite now our national coordinator, Dr. Bharti Dhore Patil, madam. She's a wonderful person and very spiritual. She's a renowned IVF specialist at Pune, but along with that, you'll be surprised to know that she has attained the degree of Bhakti Shastri, and she has read Bhagavad Gita and very spiritual person. So I'll request Madam to address the gathering and introduce the speaker, Sheetal Shadaji. Thank you so much. Good evening, all. Welcome, Dr. Sheetal ji. Thank you very much for accepting our invitation. And thank you, Dr. Ritu. Vice President's message is a very important to us.
Dr. Pankaj Talwar, Shweta Mittal could not come today, but then their blessings, their encouragement is always there. And the complete pivot is Lina. Lina, everything is revolving around Lina. Lina is so sincere, so particular. Thank you so much for introduction also, and for this 9 different modules and making me a big part of this program. Self-empowerment was something very different. We always used to say women empowerment, patient empowerment, everything. But we forget about the doctors as themselves, as a human being. They are not the body, they are also souls. And how do they reach to their themselves inner self? That is very different, and this is a different aspect one has to know when you are in the medical practice. Especially, you know that you are dealing in and out with different patients, different conditions. You have seen nowadays, you just do some sentences to the patient and patient gets agitated. Patient's level is been less. Patient, they just simply come in the cabin and then start beating. They don't understand doctor is also a person. He is not a god, or he has also a soul. He is different. So they have to behave with the doctors differently. And the doctor has to also understand that this is the societal change. So now once the societal change is like this, you have to change yourself. We have to know yourself how to deal with this kind of a situation. When you are breaking a bad news, how you should be very, very communicative to the patient, very different way altogether. Leaving aside your ego, you have not done anything wrong, but still the patient is been hurt. That's it. And the hurt patient should be uh, faced completely differently with your inner self gathering together. Your inner self is very important, and that's how we thought there are different ways to reach to that goal. So different 9 modules which we did, Sheetalji, is actually to make them go different path to know which one you like, you accept, and you may pursue that, and that will go ahead. So with this, I would like to introduce our very special guest today, Mrs. Sheetal Sada. She is been by professionally BE Electronics from Walchand College, Sangli, postgraduate diploma in embedded system from Deccan University, worked in software testing field in GPMORGAN, Chess JP USA. Morgan. Yeah, JP okay. Morgan. JP Morgan, and working currently as an assistant director in self-owned company, Kanna Engineers and Drafters Private Limited. Her journey in Mahayoga, Yogdham, was something very different, and which made us to invite her or to accept her as a speaker. It was she became a disciple of Mahayogdham in 2004. A regular practitioner of Kundalini meditation, that is called Sahaj Yoga, and she's pursuing further spiritual studies because it is not one step. I know that it has to be kept on. You find it out more and more yourself. Providing genuine service for improvement of the mental health to achieve the peaceful journey towards the soul through our scientific spiritual uh, prayogas derived from Bhagavad Gita and Jnaneshwari. Guideliners for Maha Yogadham Alandi since 2016. She's a certified yoga trainer of Maha Yogadham Alandi, Pune since 2017. She's received Maharashtra State Yoga Teacher Certification in 2022. She's a regular yoga, she conducts regular yoga sessions, which are from 2017. And she has served as a yoga instructor in with Vidyachal Vidyachal School, Aund, Pune. And she's pursued a nutrition and a dietitian course certified by RIHSM Pune during the COVID time. Many people around the world have benefited during the COVID time because of her involvement in the meditation and diet. Regular practitioners are still experiencing this wonderful results. So these are very important because long term is very important. She has been pursuing them
for a long time. She has done advanced nutrition sessions also given as per the requested. So with this, you know that how we have been selected Sheetalji and how she will justify the topic which has been given to her. Now we invite you, Sheetalji, for this talk. The stage is yours. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. Bharti. Thank you, Dr. Leena ma'am. Thank you, Dr. Bharti ji, for wonderful introduction. सेशन की शुरुआत, सत्र की शुरुआत मैं गुरु ब्रह्मा से करना चाहूंगी. Let's recite. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आज के इस झूम के मंच पे, दो इट्स एन ऑनलाइन मंच, बट ये झूम के मंच पे मुझे आज यहाँ पे इतना अच्छा मौका देने के लिए सबसे प्रथम सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक सहृदय से नमन करती हूँ और सेशन की शुरुआत करना चाहती हूँ. जैसे भारती मैम ने ये बोला, ये पर्पस मुझे बहुत सही लगा. द पर्पस बिहाइंड दैट सेल्फ एम्पावरमेंट कैन बी tackled in many ways. There are many ways. She said one sentence very nicely, that there might be many ways. Which way will click you? That is not in your hands. You have to try those ways and then come to your point so that one can justify or one can walk on the path so that the journey is more smoother. The journey will get some destination. Because अगर destination को target नहीं किया तो फिर जर्नी पे चलने का मजा नहीं आएगा. And we are here to get our life fully and with peaceful and in a satisfactory way, and then only the self empowerment will justice. वो वर्ड को अगर जस्टिस करना है, वो वर्ड पे अगर खरा उतरना है, तो आज हमें ये टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड इट विल बी माय प्लेजर इफ आई कैन शेयर सम थॉट्स ऑन दिस टॉपिक. Though you will be seeing, talking to, this will be my thoughts. These are the words which are coming from the power, which is a दैवी power. यानी कि मैं जो बात कर रही हूँ वो डोर किसी के हाथ में है. वो मेरे सदगुरु के चरणों के प्रति नमन करते हुए ये सत्र को शुरुआत करती हूँ. हम पतंग को ऊंचा उड़ते हुए देखते हैं, हम आकाश में पतंग को ऊंचा उड़ते हुए देखते हैं. हम देखते हैं वो पतंग कितनी सुंदर है, वो पतंग कितनी अच्छे से उड़ रही है. बट कहीं ना कहीं हम वो डोर को भूल जाते हैं. वो डोर जिस प्रकार मेरी पतंग की डोर जो मेरे सदगुरु के हाथ में है, उन सदगुरु के शक्ति को त्रिवार वंदन करते हुए ये सत्र की शुरुआत करना चाहती हूँ. दिस टॉपिक टुडे इज स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू कुंडलिनी मेडिटेशन. देखा जाए तो आज स्ट्रेस इतना कॉमन वर्ड हो चुका है. तनाव क्या है, ये स्ट्रेस यानी कि ये तनाव क्या है, ये मैं आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें एक वर्ड नहीं लग रहा है. दिस हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. वी हैव बीन सो मच अडेप्टेड टू दिस वर्ड दैट ये लाइफस्टाइल का कब पार्ट हो चुका है हम नहीं बोल सकते. ऑल जनरेशंस इजीली बोलते हैं स्ट्रेस आया है थोड़ा. छोटे छोटे बच्चे घरों में बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रेस है, हालांकि उनको पता भी नहीं है कि इधर वो स्ट्रेस है या नहीं है. बट इतना ज्यादा ये वर्ड को हम अडेप्ट कर चुके हैं, इतना ज्यादा ये वर्ड हम पे हावी हो चुका है कि हम जिस युग में आज जी रहे हैं, उस युग को हम कलयुग नहीं कहेंगे, उस युग को हम टेंशन युग कहेंगे. क्या आप एग्री कर सकते हैं? थोड़े लोग कैमरा टर्न ऑन करेंगे तो मुझे ये सेशन इंटरेक्टिव करने में मजा आएगा. थोड़े लोग जो भी सुन रहे हैं मुझे ये प्लेटफॉर्म पे, मुझे जूम में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. डोंट बी अफ्रेड, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. एंड जितना कैमराज ऑन रहेगा, जितना आप मुझसे बात करेंगे, दो वी विल बी टॉकिंग इन द चैट बॉक्स, दो वी विल बी टॉकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, बट आप मुझे सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात रहेगी. तो आप मुझे सुनिए बट कैमराज ऑन करिए. मैं कोई भी क्वेश्चन बीच में पूछने वाली नहीं हूँ.
ओके, तो जो आज का युग है, कई लोग बोलते हैं ये कलयुग है, कई लोग बोलते हैं ये ऐसा युग है, ये ऐसा इसका विनाश होने वाला है, बट हम जो कहते हैं महायोग धाम में, ये युग को हमने बोला है ये टेंशन युग है। क्या आप एग्री करते? कृपया जहां पे भी कैमराज ऑन है, थम्स बताइए, एग्री करते हैं आप? थैंक यू। दिस इज अ टेंशन युग। छोटी छोटी बातों का हम टेंशन ले लेते हैं। दो दिस प्लेटफॉर्म, आज जैसे जो सारे आप रेप्यूटेड डॉक्टर्स, यू आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब आप काम करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म्स टुडे। आपको घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, आपको आपका क्लिनिक संभालना है, आपको आपके सर्जरीज देखने हैं, आपको ट्रीटमेंट करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बहुत ज्यादा आपके पेशेंट्स को संभालना है। you are you are handling an human being, that's not at all easy, because उसके इमोशंस को संभालना है। आपने बहुत सही बोला भारती मैम, कि जब एक पेशेंट आता है ना, उसको कन्वे करना है, देर आर सर्टेन वेज टू कन्वे देम कि ये ट्रीटमेंट ऐसा चलेगा, ये ट्रीटमेंट ऐसा हो रहा है, ये रिजल्ट है, बट वो कैसे रिएक्ट करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। आप कैसे रिएक्ट करोगे ये आपके हाथ में है। सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। उसे कंट्रोल आप नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको जाना भी नहीं है, बट आपके अंदर का भाव क्या है, आपके मन में कैसे भाव चल रहे हैं, ये कंट्रोल करना आपके माइंड में है, आपके हाथ में है, एंड दिस इज इन योर हैंड्स। दो इट इज एन टेंशन युग, हमारे अगर मस्तिष्क में चलने वाले विचारों की गति हमने देखी, तो प्रति मिनट 50 to 60 थॉट्स जस्ट क्रॉस अवर माइंड। नॉर्मल माइंड बोल रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजिटेटेड माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंग्री माइंड, आई एम टॉकिंग नॉर्मल इंसान। आप गूगल कर लीजिए, 50 to 60 थॉट्स ऑन एवरेज चलते हैं। तो दिन में कितने हुए? 24 आवर्स का अगर दिन है, तो लगभग 70 to 80,000 thoughts they cross in our mind, and you will be shocked to hear the following sentence: 80% thoughts are negative. 80% of thoughts are negative, 90% thoughts are repetitive. यानी कि कल जो थॉट्स थे उससे कंटिन्यूड आज भी वही थॉट्स आ रहे हैं। कल जो सोचा मैंने आज भी मैं वही सोच रही हूँ, यानी कि कूड़ा कितना हो गया जमा। सोचिए 90% कूड़ा है, कचरा है। उसको हटाने के लिए आपको आज के टॉपिक की बेहद जरूरत पढ़ने वाली है। मे बी सम ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी, आई एम नॉट डिनाइंग, it's okay, and it is appreciable, it is really appreciable. I'm looking at the world now, the world has come to an era where everyone is looking for options. माइंड स्ट्रेस फ्री करना है, माइंड कूल करना है, माइंड काम करना है, हर एक जन ढूंढ रहा है, क्योंकि द टाइम हैज बीन देयर। ये टाइम आ चुकी है, ये टाइम आ चुका है, ये घड़ी आ चुकी है कि एवरीवन लुकिंग आउट फॉर द सॉल्यूशंस। सबको सॉल्यूशंस चाहिए, एंड आई एम रियली वेरी डिसहार्टेंड टू से दैट सबको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं जानना चाहता कि जो लंबा चले, जो अपने पास टिका रहे। ऐसा सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए, सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। जैसे 2 मिनट मैगी, वैसा युग आ चुका है। हर एक चीज 2 मिनटों में, हर एक चीज 5 मिनटों में, हर एक चीज आज के आज, अभी के अभी। जैसे लीना मैम ने मुझे कोऑर्डिनेशन करते हुए बात की थी, हमें इसी सेशन में अनुभव कराइए। इट्स ओके, दैट वाज हर डिमांड। इट्स ओके, क्योंकि आप लोगों को अगर अनुभूति नहीं आएगी, आप लोगों में अगर जिज्ञासा नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब आप लोग टर्न कैसे होंगे? Yes, the world has now become impatient. ये जनरेशन का नहीं, हम सबका ही देख लीजिए। हम बचपन में जैसे इतना एजिटेटेड नहीं होते थे, उतना हम अभी हो रहे, उतना इम्पेशेंट अभी आज हम हो रहे, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आज हम बोलते हैं कि षड विकार, हम बोलते हैं जैसे कॉमनली षड विकार जो कहते हैं, उसमें एक ऐड कर लीजिए कंपटीशन। This competition is not about yourself. This competition is about other lives, where you are scrolling every day other people's lives. हर एक स्क्रोल पे, हर एक स्टेटस पे, हर एक इंस्टा पे दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरे के पार्टी में क्या हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के प्रति हम कितने विचार हमारे नष्ट कर रहे हैं, ये हमें ट्रैक रखने के लिए बोला तो हम हमको ही खुद को पागल डिक्लेयर कर देंगे।
The only thing is that we are not keeping track, and that's why the time has come that we need to keep track. For gaining something you have to lose something. अगर मेंटल पीस, अगर ये स्ट्रेस हटाना है, तो कुछ गेन करने के लिए आपको ये फॉलोइंग कनेक्शन आज कुछ ना कुछ नया एंगल दे के जाएगा. फॉर दैट आई एम वेरी मच श्योर. क्या है ये तनाव हमने देखा, क्या है ये स्ट्रेस, टेंशन युग है, विचारों की गति इतनी ज्यादा है, नॉर्मल ही लोगों के विचारों की गति इतनी है, तो गुस्से में तो हम जो हमारी सांसें चलती है, उसका तो मैं क्या ही बखान करूं. यानी कि उसके बारे में क्या ही बोलूं मैं. हम आज नॉर्मल ही लोगों के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. कैसे एंगर कंट्रोल करना है, कैसे इन थॉट्स को कंट्रोल करना है, क्या ये हमारे हाथ में है? ये Yes, this is totally in our hands. This is doable. This is practically possible. ये एक्सपीरियंस करके ही, यही बलबूते पे हम यहाँ पे ये आत्मविश्वास से, हम ये कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कर पा रहे हैं हम एंड कर सकते हैं. इट इज डेफिनेटली डुएबल. दिस इज डेफिनेटली डुएबल. ओके, ये टेंशन युग है, बट इसको डील करने के लिए हमारा जो माइंड है उसको टटोलेंगे आप. अगर ये प्रेजेंट टेंस में कम रहता है, ये फ्यूचर एंड पास्ट में ज्यादा रहता है, इसकी टेंडेंसी है. मन का बेसिक स्वभाव ही चंचल है. चंचल वृत्ति मन का स्वभाव है. वो उस चंचल वृत्ति को स्थिर कैसे करना है, उस चंचल वृत्ति को कैसे नील डाउन कैसे करना है, उस चंचल वृत्ति को टुवर्ड्स स्थिरता कैसे लेके जाना है, इसके लिए हमको योग की तरफ जुड़ना पड़ेगा. योग शब्द क्या है? योग शब्द में ही युज धातु आता है, संस्कृत का युज धातु, जिसका अर्थ होता है जुड़ना. आज योग 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 कॉमनली जो बोला जाता है शब्द, जिसे हम वाइडली यूज करते हैं, दैट इज मेंट फॉर योगा प्रैक्टिस. आसन प्राणायाम की क्लासेस को योग हम बोल देते हैं, योगा 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 योगा. ये योग अलग है, ये योगा अलग है. डेफिनेटली एक अंग है, बट ये योग जो आज हम योग की बात कर रहे हैं, ये प्रमुख पतंजलि योग सूत्र में का, जिसका योग सूत्र में 8 अंगों में ये डिवाइड किया जाता है. आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. तो ये 8 अंगों में बटा जाने वाला ये पतंजलि महर्षि योग द्वारा दिया गया है. ये 8 अंगों में अभ्यास किया जाने वाला योग, आज इस योग की तरफ मुड़ने का वक्त आ चुका है. आज का हमारा प्रोमिनेंट फोकस रहेगा कि कुंडलिनी मेडिटेशन क्या है, इससे हम स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं. तो टुवर्ड्स थोड़ा सा कुंडलिनी मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज इतना वाइडली कहा नहीं जाता है. महायोग धाम जैसी संस्थाएं, हिंदुस्तान में कई संस्थाएं होंगी, कई ऐसे शक्तिपीठ होंगे, कई ऐसी सिद्ध गुरु परंपराएं होंगी जहां पे ये अभ्यास दिए जाते हैं. बट आज ये घड़ी आ चुकी है, आज जब ये स्टडीज हम करते हैं, आज ये जब अभ्यास हम करते हैं, तब हमें आज ऐसे लगता है कि आप जैसे लोगों के प्रति हमारे अनुभव जब हम शेयर करेंगे, ये कुंडलिनी शक्ति जागृति के बारे में जब हम बोलेंगे, तभी जाके क्यूरियोसिटी डेवलप होगा. तभी जाके जब हम हमारे इफेक्ट्स बताएंगे, तभी जाके आप लोग कहीं ना कहीं जागरूक बनेंगे एंड इसके प्रति 2 कदम चलेंगे. तो ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे की जाती है? ये कुंडलिनी शक्ति जागृत केवल सिद्ध गुरु के द्वारा ही की जाती है. ये कुंडलिनी शक्ति जागृत सिद्ध गुरु द्वारा की जाती है. पहले ऐसे होता था कि गुरु शिष्य परंपराओं के द्वारा ये अभ्यास किए जाते थे, जो कि गुड़ रीति से बहुत सारे आश्रमों में किए जाते थे, गुरु गृह में किए जाते थे. बट आज जैसे आज ये कलयुग, आज ये टेंशन युग में ये कुंडलिनी शक्ति जागृति के बाद के अनुभव अगर बताने के लिए आज की घड़ी की डिमांड है, ये आज के टेंशन युग की ये डिमांड है कि आज इसे खुला करना पड़ेगा कि ये कुंडलिनी शक्ति जागृति है ही क्या. हम कुंडलिनी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा रेफरेंस, जिसे हम भगवत गीता का रेफरेंस लेंगे. भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के भूमि में सुनाई की थी. युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति ऐसे हो गई थी, गलित गात्र हो गया था. अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था. सामने उसके सारे रिलेटिव्स देख के वो घबरा गया था.
ऐसे स्थिति में अर्जुन को उठ के खड़ा करना, उसको सक्षम करना, इसके लिए जो स्पिरिचुअल बैकबोन दिया है वो भगवत गीता के थ्रू दिया गया है। ये भगवत गीता का माध्यम से भगवान ने अर्जुन को चैनल बनाते हुए हम सब के लिए ये योग खुला किया है। ये कुंडलिनी शक्ति का वर्णन, ये कुंडलिनी शक्ति का वर्णन भगवत गीता में आता है, 6ठे अध्याय में ज्ञानेश्वरी में आता है। ज्ञानेश्वरी क्या है? ये ज्ञानेश्वरी, ये ग्रंथराज, ये भगवत गीता का विस्तारीकरण है। जो 750 श्लोक भगवत गीता में है, उसका विस्तारीकरण करने के लिए भगवान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने 9000 ओवियों का रचा गया ये ग्रंथराज आज उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट जो ज्ञानेश्वरी के अभ्यासक है, जो हम जैसे सिद्ध गुरुओं के छत्र छाया में आगे बढ़ने वाले शिष्य है, आज हम पे ये जिम्मेदारी आ चुकी है कि इसे कहीं ना कहीं हमको बताना पड़ेगा। ये कुंडलिनी शक्ति का वर्णन ज्ञानेश्वर माउली ने 6ठे अध्याय में किया है। ये कुंडलिनी शक्ति, तैशी ते कुंडलिनी मोटकी ओट वळणी, अधोमुख सर्पिणी निदेली असे। ये ओवी आती है अध्याय 6ठे में 223वीं ओवी, जिसे हम हिंदी में रूपांतरण करती हूँ। ये वैसी वो कुंडलिनी मोटकी ओटवर्णी, उसको बोलते हैं 3.5 फेर मालिनी, अधोमुख सर्पिणी सोवत है। ये जो अधोमुख सर्पिणी है, जो 3.5 फेरों में उसने ऐसे बॉडी को रोटेट कर लिया है, सर्पिणी यानी कि स्नेक, जो सर्पेंट पावर हम कहते हैं, उसने बॉडी को जो रोटेट कर लिया है, उसका मुख अध है, यानी कि अधोमुख में ये सर्पिणी सर्पेंट पावर हम सब में निद्रिस्त है। हम सब में ये सोई हुई शक्ति है। आप बोलेंगे कब से सोई हुई है? ये युगों ने युगों से सोई हुई है, कई जन्मों से सोई हुई है। ये प्रतीक्षा कर रही है कि कब ऐसे कोई सिद्ध गुरु या फिर ऐसा कोई चैनल हमको मिल जाए कि हमको कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग का अनुभव हो जाए। ये कुंडलिनी शक्ति जो निद्रिस्त है, उसको सिद्ध गुरु अपनी शक्ति से, शक्तिपात दीक्षा से, जिसे हम कर्मयोग दीक्षा भी कहते हैं, शक्तिपात दीक्षा से इसका मुख थोड़ा सा अधोमुख है ना, उसको थोड़ा सा ऊर्ध्व कर देते हैं। ये अधोमुख सर्पिणी जो सोई हुई थी, उसको किंचित जगाया जाता है। एंड उसके बाद जो मैंने 8 अंगों की बात की थी, 3 अंगों का अभ्यास शुरू हो जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आगे वाले चलने वाले 3 अंगों पे किए जाने वाले अभ्यास केवल ये कुंडलिनी शक्ति जागृति के बाद ही होते हैं। बट हम ये आगे के पार्ट पे थोड़ा सा बाद में आते हैं। हम देखेंगे कि अंतर क्या है कुंडलिनी शक्ति जागृति के बाद किया जाने वाला मेडिटेशन एंड रेगुलर मेडिटेशन। व्हाट आर द डिफरेंस? दिस इज द कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन टू अस। क्यों ये डिफरेंट है, हम क्यों माने? आज मेडिटेशन आज जो बाजारों में किया जाने वाला मेडिटेशन है, यानी दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी। आज भगवान की दया से लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि बहुत अच्छा है कि वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। घर घर में आज सब बोलेंगे हाँ हम क्लास करते हैं मेडिटेशन का, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 मिनट, मैम हमारा रूटीन है। बहुत अच्छा, दैट इज रियली अप्रिशिएबल, because that is the only way to connect to yourself. Whenever we conduct Kriya Yoga sessions, जैसे आपने मेरे introduction में सुना, when we conduct Kriya Yoga session, I always tell people, this is just not for the body, this is for body, mind and soul. The connection goes very deep towards the soul, though it is primarily working on the body. Body stable है, तब mind stable है, तब आपके सोल के प्रति जाने के लिए आपका रास्ता तैयार हो सकता है। देयर इज ओनली, आपको जो भगवान जी ने कैरियर दिया है वो बॉडी है, उसे ठीक रखना, उसे सक्षम रखना, ये आपके हाथ में है। यस, इट्स इन आवर हैंड्स। तो मैं आ रही थी डिफरेंसेस के बारे में, कुंडलिनी मेडिटेशन एंड नॉर्मल मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जब हम मेडिटेट करते हैं, कई जगह पे सांसों पे ध्यान किया जाता है, कई जगह पे केवल आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान करने के लिए बोलते हैं, कोई मंत्र मेडिटेशन करता है, कोई नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हुए मेडिटेशन करता है। बहुत सारे मेडिटेशन के टेक्निक्स है। दीज आर ऑल ओके, दीज आर ऑल फेवरेबल। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ इनके फायदे नहीं है, दीज आर ऑल ओके, बट दीज आर ऑल प्राइमरी स्टडीज। जब हम कुंडलिनी मेडिटेशन की बात करते हैं, तब
हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही, बट थोड़ा सा ऊपर का उठने वाला जो ये मार्ग है, यहाँ पे ये जब मैं कहती हूँ कि कुंडलिनी मेडिटेशन, कुंडलिनी शक्ति जागृति के बाद इसे जादुई योग कहा जाता है। हम जब साधना में बैठते हैं तब जो हमारी क्रियाएं होंगी, हम जो करेंगे नहीं, जो क्रियाएं होंगी, दैट विल बी नीडेड फॉर माय बॉडी। लेट्स से इफ आई एम सिटिंग, दोज क्रियाएं, अगर मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, दैट क्रियाएं will be needed for my body, for my fitness. If Leena ma'am is sitting, if Bharti ma'am is sitting, whatever kriyas are happening, they are suitable, they are meant for their bodies. Understanding? आपको ये ज्ञात हो रहा है? ये थोड़ा जड़ टॉपिक है, बट ये नहीं बताऊंगी तो आगे का चैनल क्लियर नहीं होगा, आगे की लिंक नहीं लगेगी। तो जिस को बॉडी को, हर एक का जैसा बैंक अकाउंट पर्सनल होता है ना, हर एक का अकाउंट है, मैं बैठूंगी तो ही खुलेगा, यानी मेरे साइन से ही मेरा अकाउंट ऑपरेट होगा। अंडरस्टैंड? मेरे अकाउंट को मैं ही टच कर सकती हूँ, आप कोई टच नहीं कर सकते। पर्सनल अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉइंट अकाउंट। अध्यात्म में एक बात ध्यान में रख लीजिए, हर एक का पर्सनल अकाउंट है, जो आपके साइन से ही, आपके ही क्रियाकर्म से ही चलेगा। तो कुंडलिनी मेडिटेशन के बाद जो शक्ति जागृत होने के बाद जो क्रियाएं होंगी मेडिटेशन में, वो मेरे बॉडी के अनुसार, मेरे व्याधि के अनुसार, मेरे जो डिसीजेस है उसको कंट्रोल के अनुसार ये शक्तियां प्रदीप्त होती है। इसीलिए आगे एक ओवी आती है, आता आत्म प्रभा नित्य नवी। ओवी मराठी में ले रही हूँ बट उसका अर्थ हिंदी में बोल दूंगी। आता आत्म प्रभा नित्य नवी, जो हेची ठाण करून देवी, तेची करुणी ठाण देवी, जो इंद्रिया ते चोरून जेवी तयासी पावीचे। आता आत्मप्रभा नित्य नवी। भगवान बोलते हैं कि इसके बाद ये जादुई योग आप में प्रकट होने के बाद जो आत्म प्रभा प्रस्फुटित होगी, जो आत्म प्रभा आत्मा की जो प्रभा से जो नित्य नूतन अनुभव आएंगे, यानी प्रतिदिन आपको नित्य नूतन, हर दिन आपको नया नया अनुभव आ सकता है जो कि आपके लिए नीडेड है। किसी को दर्शन होंगे, किसी को क्रियाएं होंगी, किसी को मंत्र घोष सुनाई देंगे, कई सारे इसमें स्टेजेस हैं जो कि आज इतना मुझे नहीं लगता कि उसका डिस्क्रिप्शन नीडेड है। बट क्या है ये कुंडलिनी मेडिटेशन, क्यों करना है एंड करने के बाद क्या होता है, ये पॉइंट पे मैं जरूर आना चाहूंगी। तो आता आत्मप्रभा नित्य निवि, तेची करुणी ठाण देवी, यानी कि आपको करना क्या है। भगवान बोलते बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको केवल आपके सदगुरु का स्मरण करते हुए बैठना है। आपको ये योग के बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आपको केवल देखना है क्या क्या हो रहा है। एंड इसमें एक ओवी में दूसरा पार्ट जो आया, जो इंद्रियाते चोरुने जेवी, यानी कि इंद्रियों को आपके पता भी नहीं चलेगा, ऐसी क्रियाएं आपको होंगी। यस, एंड हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आप में से अभी ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए कई हमारे साधक, कई हमारे फॉलोअर्स ये बात की पुष्टि आपको जरूर दे देंगे, क्योंकि वो भी ये सारी चीजें आज कई वर्षों से, कई दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे बेनिफिट मिला रहे हैं। इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है, उस पर भी हम आएंगे। बट मैं थोड़ा सा, अगर साधना के अनुभवों के प्रति आती हूँ, तब मेरे अनुभव कहना बेहद जरूरी है ये प्लेटफॉर्म पे। आप लोग बोलेंगे कि बीइंग एन इंजीनियर, हाउ यू आर कनेक्टेड हियर। आई विल दिस आई विल देन दिस कॉल एज एन, जैसे मैंने भारती मैम से बात की थी, आई डेफिनेटली दिस लुंग एज अ सुप्रीम लिंक के जैसा मैं बात करती हूँ इसके पास। ये मैंने कहीं प्लान नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि सर मेरे जीवन में कब आने वाले हैं, कब पिक्चर में जुड़ने वाले हैं। व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, आई वाज टोटली नास्तिक, यानी कि मेरा कहीं पे भी ऐसे रिचुअल्स पे विश्वास नहीं था। मैं उनसे कनेक्ट हुई, मैं नई नई वाली बहू थी परभनी में, तो मैंने सोचा कि सासू माँ बोल रही है, कैसे उनको मना करो, सर से मिलना पड़ेगा, चलो मिल लेते हैं, क्या हर्ज ही क्या है। एनीवेज आई वाज फ्लाइंग टू यूएस इन 2 months, सो आई थॉट इट्स ओके इफ आई गो एंड मीट सर। सर के पास बैठी, सर बोले ये तो टोटली ब्लैंक है, इसको क्यों यहाँ लाया गया है। तो उनको लगा कि ये प्रिपरेशन के साथ कोई भी नया इंसान जब आता है तो इसको ये बेसिक पता चाहिए कि ये क्या योग है and क्या नहीं है। ये टोटली ब्लैंक है, इसको क्यों लाया गया। बट सासू माँ की बहुत इच्छा थी तो इसके लिए ये योग मुझे दिया गया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उसके बाद, ऐसे बोलते हैं ना कि कश्ती जो चलाता है, कश्ती जब चलाता है, चलाने वाला जो रुख पकड़ लेता है उसको वही किनारा दिखता है। एग्रीड। कश्ती जब हम चलाते हैं, चलाने वाला सामने दिख रहा है तो उसको सामने वाला ही किनारा दिखेगा ना। कश्ती ने रुख बदल लिया तो उसका किनारा दूसरा हो जाएगा। इफ यू टर्न योर बोट, देन
the shore will be different. And that's how my boat turned. तो ये बात मेरे लिए वैसे ही अप्लाई हुई है कि जैसे किसी को धकेल दिया यहाँ पे एंड मैंने बाद में एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। कई लोग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से आते हैं, हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोग आते हैं, कई अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, कई लोगों की सिचुएशंस अलग होती है, बट मैं मेरी ही बात करना चाहूँगी कि ये योग के साथ मेरे को क्या अनुभूति आई। जब मेरे फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब मैं साधना में बैठती थी, तो मेरा ये फ्रोज़न शोल्डर यानी कि ये लॉकिंग सिस्टम बहुत बढ़ गया था। मुझे ये नेक स्टिफनेस की दिक्कत बहुत आती थी एंड तब मैं जब 2007 की बात करती हूँ, तब इतना फिज़ियोथेरेपी वाइड स्प्रेड नहीं था। फिज़ियोथेरेपी के सेशंस जगह-जगह पे नहीं थे, यूएस में भी नहीं थे बिकॉज़ माय डिलीवरी वाज़ इन यूएस। तब मुझे साधना में जब मैं बैठती थी, तब ऐसी क्रियाएँ होती थी कि जिससे ये रिलीज़ मिल जाए। दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। नॉट फर्स्ट एक्सपीरियंस बट फिजिकल फिटनेस के प्रति फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐसे स्पिरिचुअल बहुत ही एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं। माय सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग इन 2006 इन यूएस जेपी मॉर्गन चेस जो आपने मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में सुना होगा। तो जेपी मॉर्गन चेस में मैंने आपने मैं जैसे मेरा बैकग्राउंड देखा होगा बीइंग एन इलेक्ट्रिकल एंड देन एम्बेडेड सिस्टम्स में कोर्स एंड देन व्हेन आई लैंडेड इन ह्यूस्टन एम्बेडेड सिस्टम्स में इतना अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं था, तो मैं टर्न हो गई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तब जब वो जॉब पे जब मैं काम करने लगी, देन वहाँ पे एक कलीग थी, जिसका नाम ब्रिजेट था। तो उसके साथ मैच करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। तब मुझे मेरे यहाँ पे सीखे गए टेक्निक्स का बहुत फ़ायदा हुआ एंड दैट वाज़ ओनली पॉसिबल टू वर्क स्मूथली एंड सैटिस्फैक्टरीली विथ अ वेरी गुड स्टार मार्क्स। ये मुझे पॉसिबल ये टेक्निक की वज़ह से हुआ। यानी कि आपका जर्नी तो निश्चित है, बट वो स्मूदर होता है अध्यात्म से। वो स्मूदर होता है ये टेक्निक से डे टू डे में ये अप्लाई करते हो आप, तब आपको ऐसे लगता है कि कोई एक शक्ति है, आप भले ही भगवान जी को नहीं माने, सुप्रीम शक्ति को तो मानते हो, सुप्रीम पावर को मानते हो, वो शक्ति, जो सोई हुई शक्ति है, उसको जगाते हैं सद्गुरु एंड ये शक्ति जगाने के बाद ऐसे अनुभव सिद्ध हमारे साधक यही कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आता आत्म प्रभा नित्य नवी, यानी कि नित नूतन अनुभव लेने के लिए हम सक्षम हैं नित न्यूतन अनुभव लेते हुए इस मेंटल युग से इट्स मेंटल स्ट्रेस के युग से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। हम ये क्यों माने? हम ये क्यों माने? क्योंकि हम आज प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग हैं। हम ये करके देखेंगे तभी हम मानेंगे, करेक्ट? हम जब ये करके देखते हैं तभी हम मानेंगे, ये जादुई योग है, ये ऑटोमैटिक क्रियाएँ प्रोड्यूस करने वाला योग है। एंड जब मैं ये सेशन की बात कर रही थी कि हम जब क्रिया योग सेशन लेते हैं, ये क्रिया योग भी क्या है? उसमें जो क्रियाएँ हमने संकलित की है, यानी कि उसमें जो हमने क्रियाएँ कलेक्ट की है, वो क्रियाएँ हमारे सद्गुरु के साधना से निर्माण हुई हुई क्रियाएँ हैं। यानी कि दैट वेयर those kriyas were produced in his meditation and then collected and now presented in the form जिसका हमने कई गुणों से अभी हमने विस्तारीकरण धीरे-धीरे किया है। हेड टू टो आपके फिजिकल फिटनेस के लिए ये क्रियाएँ जब हम लेते हैं, हम इसे क्रिया योग नाम देते हैं। कई जगह पे क्रिया योग अलग भी होता है, बट हम जब क्रिया योग कहते हैं तब दैट इज़ फिटेड फॉर योर फिजिकल फिटनेस एंड देन दैट फिटनेस इज़ सूटेड फॉर मेडिटेशन। आपके मेडिटेशन करने के लिए आपकी शारीरिक स्थिति उत्तम रखने का काम आपका क्रिया योग करता है, जो कि योग आसन प्राणायाम के साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। ये क्रियाएँ जब हम काम करते हैं ये क्रियाओं पे एंड ये मेडिटेशन के साथ कुंडलिनी मेडिटेशन के साथ जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, क्यों हमें ये सब करना है? टू बैटल विद द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? बिकॉज़ हमारे विचारों की गति बहुत द्रुत गति से दौड़ रही है। ये विचारों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें कंट्रोल चाहिए प्राण पे। जो नॉर्मली हम लेते हैं वो प्राण। आप ब्रीथ कर रहे हैं ना सब? आपके नोइंगली अननोइंगली यू आर ब्रीथिंग, राइट? राइट? जस्ट नॉड? थैंक यू। वी आर ब्रीथिंग। चलिए एक एक्सरसाइज लेते हैं, ओके? वो एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा हाउ ब्रीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड हाउ आवर थॉट लेवल्स में कैसे सुधार आता है ये देखिए, ओके? सिट स्ट्रेट जहाँ पे भी बैठे हैं, ओके? डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ लीजिए, इफ कंफर्टेबल माउथ को फुलाइए। रिलैक्स। आपने अभी क्या किया? हम सभी ने कुंभक का प्रैक्टिस किया।
ये कुंभक स्थिति यानी कि माउथ को होल्ड कर लिया था, नाक से जो इनहेल किया, प्राण को अंदर ही पकड़ के रखा आपने, करेक्ट? आपने किसी ने भी नाक प्रेस नहीं किया था, माउथ को इन्फ्लेट किया एंड उससे ही आपकी प्राण आपके पकड़ में आ गया। ओके, अभी हम वापस करेंगे, तब आपको क्या करना है, आपके थॉट्स को मॉनिटर करना है। ओके, भूलेंगे नहीं। थॉट्स पे एक कैमरा टर्न कर लीजिए। रेडी? इफ यू कैन टर्न ऑन मोर कैमरास इट विल बी बेटर, आई विल फील कनेक्टेड। ओके, चलिए, इनहेल, रिलैक्स, वेरी गुड, एक्सलेंट। जितने भी कैमरास में देख रही थी, बहुत अच्छा होल्डिंग किया, यानी कि आप रेगुलर योग प्रैक्टिस करते हो। वेरी गुड। चलिए, चैट बॉक्स में लिखिए कितने थॉट्स आए, फटाफट लिख दीजिए। थोड़ा टाइम कम डालेंगे इसमें, क्योंकि आगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट लिख दीजिए। वेर देयर थॉट्स? इफ देयर वर थॉट्स, हाउ मेनी वेर देयर? 2 थॉट्स आए, बहुत सारे आए, आए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। नॉट अ सिंगल, वेरी गुड। सेकेंड टाइम 0, वेरी गुड। मेनी, ओके, वेरी गुड। अराउंड 10, वेरी नाइस। सो एक्सलेंट, नाइस, वेरी गुड रिप्लाईज। आप सब लोग ऑनेस्ट थे, इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने 10 लिखा है और किसी ने 0 लिखा है, तो भी अच्छा है। मैंने पहले क्या बोला था आपको, विचार कितने आते हैं? 50 टू 60। एंड अभी जब हमने कुंभक किया, आपको इंस्टेंट रिजल्ट क्या आया? किसी के 10 आए, किसी के 2 आए, किसी के 0 आए हैं। जस्ट एक कुंभक स्थिति से आपके अगर आपके थॉट्स का प्रोडक्शन इतना कम हो सकता है, तो सोचिए, निरंतर अगर कुंभक स्थिति में रह सकते हैं तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। प्राण को इतनी देर ऊपर रखने के लिए ऊर्ध्वरेता भवेत् साधु, हम कोई साधु नहीं है, हम ये पूरे संसार में रहने वाले जीव है, यानी कि हम कॉमन, वी आर कॉमन ह्यूमन बीइंग। आप भी, मैं भी, हम सब कॉमन है। हमको डे टू डे ड्यूटीज करने हैं, हमको सही सारे प्लेटफॉर्म से हमारे काम करने हैं, इसीलिए हमारे अंदर विचारों की गति आएगी ही। इसको थमाने के लिए हम केवल डीप ब्रीथ पे ध्यान दे सकते हैं। ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्राण पे अवेयर, एक ध्यान केवल प्राण पे केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाके प्राण के पीछे की ये ट्रेन अपने हाथ में आएगी। प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो ट्रेन है, इसका इंजन क्या है? कम ऑन, व्हाट इज द इंजन? जस्ट क्विक रिप्लाई चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। व्हाट इज द ट्रेन एंड व्हाट इज द इंजन? इंजन क्या है पूछा मैंने, मेरा सवाल क्लियर है? व्हाट इज द इंजन? Very good. Thank you. The engine is प्राण. The engine is प्राण, जिसे हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में ब्रेथ बोलते हैं। यस, ये प्राण को ऊर्ध्व गति में, यानी कि इसको कम नीचे जाने देना, इस पे हमको काम करना है। ओवी आती है, माउली की बहुत ही साइंटिफिक ओवी आती है, जो कि आपको क्लियर कर देगी व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेस। नासाग्रीचा वारा जो जात असे अंगुळे बारा, तो गचिये धरुनी माघारी आत घाली। यानी कि हम अगर नॉर्मली हमारा एक्सेल नोट करते हैं, तो सोचिए, उसमें 4 4 8 एंड 12 12 फिंगर्स हमने लगा दिए, तो उतना हम नॉर्मली एक्सेल करते हैं बिना मॉडरेट किए हुए। नॉर्मली, मैं एंग्री लोगों का बोल नहीं रही हूँ। नॉर्मल जब आपका एक्सेलेशन चलता है, तब आपका एक्सेलेशन ऐसे ही चलता है। हमको आदत नहीं रहती डीप ब्रीथ करने की। वी आर नॉट अवेयर, बिकॉज इतना सोचने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। हम आज जूझ रहे हैं यही बात से, हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट हमें आज के युग में, आज के इस मेंटल स्ट्रेस के युग में, इस तनावग्रस्त युग में सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको इस अधोगति से जाने वाले प्राण पे कंट्रोल लाए, तब जाके ये ट्रेन ऊपर ट्रांसफर होगी, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चैनलाइज़ होगी। ये कहने के लिए बहुत सिंपल है, बट करने के लिए उतना ही ट्रिकी है। सो व्हाट द ट्रिक इज़? द ट्रिक इज़ टू टेक अ डीप ब्रीथ।
नासाग्रीचा वारा यानी कि आपके नाक से जो बाहर जा रहा है प्राण, जो उतना नीचे जा रहा है, उसको थोड़ा-थोड़ा करते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या रिक्विसिट है? प्री-रिक्विसिट? यू हैव टू हैव अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका पेट छूटा हुआ है, आपका बॉडी यानी कि शरीर अगर आपका जड़ है, तो ये डिफ़िकल्ट है। नॉर्मल अगर एजिटेटेड माइंड है, अगर बहुत ही स्ट्रेस माइंड है, बहुत ही क्रोध में आप आ चुके हो, तब आपके विचारों की गति जैसे बढ़ती है, ये शुरू में मैंने बोला, तब इस पे क्या करना पड़ेगा आपको? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इंसान क्रोध में है, उसको आप नहीं बोल सकते, "अरे डीप ब्रीथ कर।" वो उठ के आपको एक तमाचा मार देगा उधर ही। क्योंकि आप उससे बोल रहे हो, उसका जो एंगर है, उसको आउटलेट नहीं मिल रहा है, उसके बीच में आप जाके सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसके वक़्त कुछ भी मत बोलिए। He has to manage, he or she has to manage his anger, and for that anger management, for that outlet, आपको स्पिरिचुअल वेज की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर आउटलेट। लास्ट वीक में हमने ऐसे एक ऐसे ही सोरोफुल इंसिडेंट से हम सभी वाकिफ़ हैं, एंड ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए हैं कि जो वेल नोन है, जो इतने पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि अपने तनाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एंड आज किस दशा में हैं हम। एंड ये दिस हैज़ नॉट बाउंड टू एनी पर्सन, दिस हैज़ नॉट बाउंड टू एनी हाउस। आज घर-घर में ही यही हालत है। आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन, आज हम जब बात करते हैं, वी आर मोर स्मार्टर देन आवर पेरेंट्स। डू यू एग्री? आर वी मोर स्मार्टर देन आवर पेरेंट्स? यस, डेफिनिटली यस। हमारे पेरेंट्स ने कंप्यूटर पे इतना काम नहीं किया, हम कंप्यूटर्स पे काम कर चुके हैं ना। अपनी जनरेशन स्पेशली वी आर व्हाटएवर वी आर इन द मिडल एज, we have worked on desktop also, we have worked on laptop also, we have worked now mobile also, and we are working or we are learning AI techniques also, थैंक्स टू आवर जनरेशन। हम इतना ग्रास्प कर रहे हैं ना, एंड अपने आने वाली जनरेशन जो बचपन से ही मोबाइल पे ही खेल रही है, जो इतने क्लिक से वो देखते-देखते बोलते हैं ना, घर-घर में जाओ आप शॉर्ट्स देखते-देखते, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो एक सेकंड्स में जो शॉर्ट्स को टर्न कर रहे हैं, वो अपने से ही 10 गुना स्मार्टर है। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर मच मोर स्मार्टर, सो द आईक्यू लेवल्स हैव डेफिनिटली राइज़न अप। बट आज बात करनी है इमोशनल क्वोशंट की, वेयर इज़ इट? व्हाई द हाउसेस एंड हाउसेस आर गोइंग ड्राई? आज आपको कॉन्फिडेंस है? आपके बेटे-बहू आपके साथ रहेंगे? किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। बट ये किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि आपको केवल आपका रोल करना है, आप ये नहीं कह सकते कि बाकी लोग क्या करेंगे। आज हम पे ये दायित्व आ चुका है कि हमको आज इमोशनल क्वोशंट कैसे साध्य किया जा सकता है, ये वेज़ ढूँढने हैं, ये अप्लाई करना है, हम अनुभूति लेंगे, तब हम दूसरों को देंगे। मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी ये प्रैक्टिकल अनुभूति का विषय है, ये केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, आप पढ़ के क्या ही कर लेंगे? कितने श्लोक आप रट लेंगे, बट अनुभूति अगर नहीं आई, प्रैक्टिकल नॉलेज में एक भी श्लोक नहीं उतरा, एक भी ओवी नहीं उतरी, तो नॉलेज इज़ ज़ीरो। यस, टेक्निकली ज़ीरो। कुछ भी उसका यूज़ नहीं है। अगर मैं मैं अगर बोलती हूँ कि मैंने ये ओवी का अनुभव लिया है, देन आई हैव द राइट टू टेल अबाउट दैट ओवी। यस, एग्रीड। मुझे अनुभूति है तब मैं बोल सकती हूँ। मुझे अनुभूति नहीं है तब मैं नहीं बोल सकती हूँ। द सेम अप्लाइज़ फॉर द इमोशनल क्वोशंट। अगर आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में सामने वाले के प्रति आस्था है, वो रिफ्लेक्ट होगी आपके व्यवहार में, आपके एक्शंस में। एंड जैसे भारती मैम ने बोला ना शुरुआत में, आपको जैसे इनके फील्ड में आपको हर एक पेशेंट से डील करना पड़ता है। मुझे लगता है हर एक जन से डील करना पड़ता है। अरे अगर होम मेकर भी है, हमको काम वाली मौसियों के साथ भी डील करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। उनके भी ईगोज़ है, अपने हैं तो है, उनके भी है। आज उनको बोल दो आप, ये काम ठीक से नहीं किया, एंड ज़रा टोन ऊपर आने दो, नेक्स्ट डे से आपके यहाँ नहीं आएँगी। नहीं आती है, कुछ ज़रूरत नहीं है उनको। वो लाड़की बहन योजना वग़ैरह जो भी है, वो प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाना है अभी अपने को। तो बट आज ईगो हर एक का है, आज टेंशन हर एक को है। वी हैव टू व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग इमोशनल क्वोशंट, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट इट। आज घर-घर में आईक्यू है।
उसकी जरूरत नहीं है। आज जरूरत है इमोशनल क्वेश्चन की, एंड इसको केवल स्पिरिचुअल वे से ही साध्य किया जा सकता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन बेस्ड ही प्रयोग आज लगेंगे। इसके लिए आपको कई टेक्निक सीखने पड़ेंगे। महायोगधाम जैसी संस्थाओं के पास आपको जाना पड़ेगा। यस, जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये बात सीखनी है। आज हमको सीखना है कि कैसे हमारे प्रति, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा प्रोड्यूस हो। यस, हम नहीं जानते, हम खोखले हो चुके हैं। हम ये टेक्नोलॉजी युग में इतने बह चुके हैं कि हमको ये भी टाइम नहीं है साथ में इकट्ठा बैठ के भोजन करें। कई घर ऐसे भी हैं कि जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर आज नहीं कर रहे तो आज कर लीजिए, आज से शुरुआत कर लीजिए, आज से एक नियम बना लीजिए, हम इकट्ठा भोजन करेंगे बट कीपिंग अवे द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जस्ट ट्राई टू मेक अ प्रॉमिस। कितना भी अर्जेंट रहो, आपका डॉक्टर फील्ड है तो मैं आपको नहीं बोल सकती ये, बट कोशिश करिए कि व्हेन द अर्जेंट, कुछ कुछ कॉलर ट्यून्स बैठा सकते हैं ना आप, कि जब अर्जेंसी है तभी हम उठाएंगे फोन, अदरवाइज हम पॉपअप नहीं करेंगे। मैं सिंपल प्रैक्टिस ये कर सकती हूँ कि मैं मेरे नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप के, इंस्टा के नोटिफिकेशंस बंद कर सकती हूँ। क्या हम कर सकते हैं? 2 घंटों के लिए कर सकते हैं, दिन भर नहीं, 2 घंटा 3 घंटा। इससे कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। और क्या होता है मेंटल डिटॉक्स? जो ये आज विचार, हर एक थॉट, हर एक एक्शन के प्रति विचार घूम रहे हैं, एंड जैसे मैंने बोला, षड रिपु केवल षड रिपु नहीं रहे, उसके साथ साथ कंपटीशन आ गया, उसके साथ साथ अटैचमेंट आ गया, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन आ गया। इन सब की बातें ही क्या करें? ये षड रिपुज आज मंडरा रहे हैं, इसके लिए निर्मल काया करनी ही पड़ेगी। निर्मल काया। आपको डिसीज फ्री देह करना पड़ेगा, आपको डिसीज फ्री माइंड करना पड़ेगा। पोल्यूशन की तो क्या ही बात करें, आज पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी है, फैला हुआ है, एंड इन सब में वैचारिक प्रदूषण भी है। आज हम बात बात पे हिंसाओं पे आ जाते हैं, आज बात बात पे हमारे पेशेंस लूज हो चुके हैं। यस, वी हैव बिकम इम्पेशेंट। तो कहीं ना कहीं पेशेंस बढ़ाने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लगेंगे, हमको कुंडलिनी मेडिटेशन की जरूरत आन पड़ी है। क्यों कुंडलिनी मेडिटेशन? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई रिजल्ट शॉर्ट टर्म है, तो वो आज अभी रिजल्ट दे रहा है, उसका थ्रू आउट द डे अगर इम्पैक्ट नहीं रहा तो उसका क्या फायदा? We are not working only for 5 minutes ना, we are working throughout the day। चिरंतन तत्व, ये ग्रंथ, ये आज भी क्यों ग्रंथ हम मानते हैं, मान्यता इसको क्यों दी गई है? क्योंकि इन ग्रंथों में किसी भी जनरेशन आ जाए, मेरी जनरेशन भी आ जाए, मेरे सवालों का जवाब भी इन ग्रंथों में है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाए, यही ग्रंथों में उसके भी जवाब मिलेंगे। ये हमारे मानवीय मन की ही ये विडंबना है कि ये स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए हमें ये योग की तरफ जुड़ना पड़ेगा, ये जादुई योग की तरफ मुड़ना पड़ेगा। पतंजलि भगवान ने ही, महर्षि पतंजलि ने ही बोला गया है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। ये योग के चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए हमें योग ही मदद करेगा। चित्त किसे कहते हैं? मन अगर बहुत विचारों के प्रति चंचल है, विचारों के प्रति हॉप हो रहा है, जैसे हम, हमारा माइंड कई डब्बों से हॉप करता है। जैसे अभी आज हम, मैंने बोला जैसे हम मल्टीटास्किंग हो चुके हैं, तो हम व्हाट्सएप देखते देखते भी खाना बनाते हैं, व्हाट्सएप देखते देखते परोसते हैं, खाते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म पे माइंड दौड़ता है। ये मन को इकट्ठा करना है, ये मन को एकत्रित करना है, ये मन को कई अंगों में जो व्यग्र है उसको एकाग्र करना है। ये एकाग्रता अगर साध्य करनी है तो हमें युज धातु यानी कि योग से जुड़ना ही पड़ेगा। देन ओनली वी कैन क्लाइम द पाथ वेयर वी कैन अचीव द बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस? हमें ये सब क्यों करना है? हमें बैलेंस साध्य करना है जहां पे हमारा माइंड, मन केवल मन नहीं रहे, वो चित्त बन जाए जिसमें कोई विकारास नहीं रहे। ये चित्त बनाने के लिए हमें योग के अभ्यास को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे हमें डे टू डे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, ये ग्रंथ ही एप्लीकेशन का है, ये ग्रंथ ही अनुभूति का है, ये ग्रंथ एप्लीकेशन का है। यस, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। दूसरा सूत्र आता है, योगः कर्मसु कौशलम। हर एक कर्म को कौशलता पूर्ण करने के लिए केवल आपको योग ही सपोर्ट करेगा। ये योग से ही, योग के प्रैक्टिस से ही आप कोई भी काम करिए, जो आपका धर्म है वो आप काम करिए। यानी कि मैं अगर गृहिणी हूं, मेरा धर्म है अच्छे से
मेरे गृह को संभालना। मैं अगर प्रोफेशनल वर्कर हूँ, मैं अगर इंजीनियर हूँ, तो मेरा काम है, मेरे को जो असाइन किया गया हुआ काम है, वो मैं 100% यानी कि 100% उस पे खरा उतरूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा काम है कि मैं मेरे काम के प्रति वही आस्था रखूँ, वही पैशन के साथ, जो मेरे प्रोफेशन का पैशन है, उसी पैशन के साथ, उसी ऊर्जा के साथ वो काम को जस्टिस दूँ। तो जो मेरा धर्म है, वो धर्म पे मैं मेरे धर्म को जस्टिस करते हुए अगर मैं ऐसा काम करूँगी, कौशलतापूर्वक काम करूँगी, तब वो कहीं जाके आत्मा को सुख की, शांति की अनुभूति देगा। दैट इज़ वर्क सैटिस्फैक्शन। एंड ये छोटे-छोटे कामों में जो अनुभूति मिलती है, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपके आत्मा के प्रति सुख देता है, शांति प्रदान करता है, यही सहज योग है। कोई दूसरा सहज योग नहीं है। बड़े-बड़े वर्ड्स कर दिए हमने, बट ये वर्ड ही बहुत सिंपल है, बट उसकी अनुभूति लेने के लिए ये प्रैक्टिसेस आपको करने ही पड़ेंगे। व्हाट वी विल अचीव, हम बोलते हैं, हम कई संतों के उदाहरण इनमें देखते हैं कि जिन्होंने ये योग पाने के बाद, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद मानवीय देह में ही साध्य किया, अंतिम गंतव्य साध्य किया। ये गंतव्य क्या होता है? अर्जुना समत्व चित्ता से, यानी कि समत्व चित्त का हो जाए, जहां पे सुखी संतोषा न यावे, दुखी विषादान भजावे। वो भी जरूर मराठी में उसका अर्थ ये जो बोलती हूँ, सुख में बहुत उल्लासित नहीं होना है, सुख में आपको बहुत हर्ष उल्लासित नहीं होना है, दुःख से आपको मुरझा नहीं जाना है, आपको लाभालाभ न धरावे मना माझी। मैंने मेरे ड्यूटीज़ कर दिए ना, भगवान मैंने मेरे ड्यूटीज़ किए, आपके अंदर जो शक्ति, जो चैतन्य, चक्रवर्ती, शोभिनी जो जगदम्बा आपकी स्थित है, वो जगदम्बा को, वो कुंडलिनी शक्ति जागृति के बाद आपने जो-जो काम किए, आपने उसकी आज्ञा लेके की। बहुत ऊपर के लेवल की ये बात हो गई, बट हम छोटे-छोटे लेवल में इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो-जो काम करूँगी, वो मुझे सुख की अनुभूति देता है। क्या ये छोटा-छोटा जो आनंद है, ये छोटी-छोटी जो खुशी है, इसको इकट्ठा करने के लिए ही ये योग है। इसको इकट्ठा करने के लिए, इसे संकलित करने के लिए, ऐसे योग के प्रति हम जब जुड़ जाएँगे, तभी हमें इस योग की सही मायने में अनुभूति होगी। एंड तब जाके हमारा माइंड बोलेगा, संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण। यानी कि ये जब माइंड हमारा प्रफुल्लित हो जाए, ये माइंड हमारा प्रसन्न हो जाए, रियल मायने में ये माइंड अगर हमारा हमको अचीव करना है, ये माइंड को 100% इस पे काबू करना है, तब ये माइंड हमें सर्व सिद्धिन से कारण है। यानी कि सब सिद्धियां प्रदान करने के लिए यही माइंड आपको प्रदान करता है और कहीं से नहीं है। भगवान बोलता है, तुझं आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकलाशी, यानी कि तेरा सब कुछ तेरे पास ही है, तू चूक गया। तू चूक गया, जाग जा। एंड हम बोलते हैं कि हम आज नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? मैं हमेशा ये थॉट रखती हूँ, जब भी हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम अभी मिडल एज में हैं, आई एम इन माय 40s, व्हाट आई एम गिविंग टू माय कमिंग जनरेशन, आई शुड गिव अ थॉट, क्या मैं देके जा रही हूँ? मैंने जो भी काम किया वो उनको काम नहीं आने वाला, वो बोलेंगे आपकी सब बातें हमें नहीं सुननी है, ये पुरातन बातें हैं। They will see how I worked. They will see how I lived my life and कई हजार आँखों से आपकी आने वाली जनरेशन आपको देखते रहती है। उनको अगर आपको कुछ दे के जाना है तो ऐसा मार्ग दे के जाइए, ऐसा कॉन्फिडेंस दे के जाइए कि हाँ, हमारे पास ऐसा अध्यात्म है, हमारे पास ऐसा स्पिरिचुअल पावर है, जिसके बलबूते पे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बलबूते पे हम मन को काबू कर सकते हैं। ऐसा मन जो आपको दौड़ाएगा नहीं, ऐसा मन आपको आपके तनाव में भी मुक्ति प्रदान करेगा। आपको एक मार्ग बताएगा कि एक्सेस टेंशन से कैसे डील करना है, एक्सेस तनाव में आपको कैसे रहना है, आपके ड्यूटीज़ कहीं चुकेंगे नहीं। कहीं पे भी भगवान जी ने ऐसा नहीं बोला है कि आपकी ड्यूटी छोड़ दो, केवल साधना करो, केवल मेडिटेशन करो। नेवर, नेवर ही हैज़ मेंशन्ड दैट। बट ऐसे सिद्ध गुरुओं के पास पहुँचने के लिए भगवान ने ज़रूर बोला है, ऐसी-ऐसी याने भेट तिथे साधुरे, तयाचे दर्शने तुटे भवबंधुरे। यानी ऐसे-ऐसे मार्ग पे तू चलता जा, तुझे पता नहीं तुझे किस रूप में ऐसे सिद्ध गुरुओं की भेंट हो जाएगी। ये भेंट के बाद
ऐसे चैनल्स जब हमारे खुलते हैं, तब हमारे आगे के जर्नीज़, जैसे मैंने बोला 3 सूत्रों पे, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास के लिए ये मार्ग कहीं खुला हो जाता है, तो हमें वो मार्ग के ऊपर चलने के लिए पहले वाला मार्ग तो अपनाना पड़ेगा ना। चैनल तो कहीं न कहीं चलना पड़ेगा। हम चलेंगे ही नहीं, तो हम पहुँचेंगे कैसे? हम बोलते हैं कई बार, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक एक पाथ पे चलने वाला एक नॉर्मल हमारा एक आदमी था। वो चल रहा था, उसको पहुँचना था एक गाँव पे। वो गाँव थोड़ा-सा दक्षिण की दिशा में था, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे थे। पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे थे। उसने पूछा मुझे वो गाँव के पास जाने के लिए, तब तक बाबा जी ने देखा नहीं था वो आदमी किस गति से आया था। उसने पूछा मुझे ये गाँव के लिए जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? बाबा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो आदमी ने बोला, "अरे यार कैसे बैठा है ये? क्या मालूम? अपनी ही धुन में है चलो।" फिर से पूछा, "अरे बाबा जी मैं आपको पूछ रहा हूँ वो दक्षिण दिशा में जो गाँव है वहाँ मुझे पहुँचना है, मुझे कितना टाइम लगेगा?" एंड उसने फिर भी बाबा जी ने जवाब नहीं दिया, वो गुस्से से चला गया। थोड़ा चला, बाबा जी ने आवाज़ दी, "ए इधर आ बच्चा, वो गाँव को तुझे पहुँचने के लिए तुझे इतना-इतना टाइम लगेगा, आधा घंटा वो 1 घंटा जो भी बोला होगा।" वो उन्होंने बोला, "मुझे मैंने तो आपको 2 बार पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया?" "अरे मुझे पता ही नहीं था तेरी गति क्या है, तेरा स्पीड क्या है ये जब तक मुझे पता नहीं मैं बोलूँ कैसे तुझे? जब मुझे पता चला अब तेरा चलने का स्पीड क्या है, तब मैंने तुझे बुलाया एंड तेरे ये गति से तुझे वो गाँव में पहुँचने के लिए तुझे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा जो भी बताया गया है। यानी मार्ग पे अगर चलना है तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को टटोलना पड़ेगा जैसे आप घर में डस्टिंग करते हो वैसे रोज़ आपके मन को आपको टटोलना पड़ेगा। उसके अननेसेसरी विचारों के कचरे को बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी ये मन आपका पावर हाउस बनेगा, तभी ये मन आपका टेंशन से डील करने वाला हथियार बनेगा। यही मन, जब तुकाराम महाराज बोलते हैं रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग, ये युद्ध कहीं रणभूमि में हमें अर्जुन के भांति लड़ना नहीं है, ये युद्ध हमें घर-घर में लड़ रहे हैं हम आज। एंड मैं तो बोलती हूँ घर-घर में युद्ध लड़ रहे हैं और किसी से नहीं लड़ रहे, ये मन से मन का युद्ध जो है, ये हम चीज़ करें, नहीं करें, करें, नहीं करें, करें तो क्या होगा? नहीं करें तो अरे! करने के पहले ही तुम इतना सोच रहे हो। ये युद्ध नहीं तो और क्या है? यही हमारा कलयुग का युद्ध है कि हम हर एक चीज़ में हमें दुविधा हो रही है। हम एकत्रित करके मन की शक्ति को जुटा नहीं पा रहे। इस चीज़ के लिए, ये युद्ध को हमें फेस करने के लिए, ये युद्ध को लड़ने के लिए आज हमें हमें लड़ना ही पड़ेगा। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार से हम लड़ेंगे, इस आत्मविश्वास से हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो राजमार्ग है। राजर्षि योग का प्राकट्यकरण करने के लिए भगवान जी ने अर्जुन को साधन बनाया। वो अर्जुन के इतने उपकार हैं, वो अर्जुन के इतने उपकार है कि जिसकी वजह से हमें ये योग खुला हुआ। उसको निमित्त उसको अगर कहना रहता था तो भगवान जी ने तो बोल दिया रहता था, "उठ जा अर्जुन ये युद्ध कर ले, तुझे करना ही पड़ेगा।" 2 अध्याय में गीता समाप्त हो जाती थी। वैसा नहीं हुआ है। अर्जुन ने ही युद्ध किया है बट अर्जुन को पूरा करके अर्जुन को स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफॉर्म करते हुए, उसको तैयार रखते हुए भगवान जी ने उसके हाथ से युद्ध करवाया है, उसको उस हिसाब से तैयार किया। वो स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिशन का अनुभूति यानी माऊली जब बोलते हैं कि ये अनुभूति मैंने खुद देखी है, यानी कि जब ज्ञानेश्वर माऊली ने 9000 ओवियों में अगर विस्तारीकरण किया है, तो उन्होंने बोलते हैं वो ओवी में मैं देख रहा हूँ एंड फिर मैं लिख रहा हूँ। ये उन्होंने खुद बोला हुआ है, यानी कि उन्होंने वापस लाइव सेट देखा, वो पूरा युद्ध का भाव सहित पूरा देखा, फिर उसका चित्रण किया। यानी कि फिर इसको अंकित किया, इसीलिए उसको वो नाम देते हैं भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी तो हम बोलते हैं। उन्होंने नाम दिया भावार्थ दीपिका एंड इसी ज्ञानेश्वरी के छुपे हुए अभ्यासों के साधन से ही हम इस युग में जी सकेंगे, हमारे कर्म कुशलता पूर्वक कर सकेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं। इसी नोट के साथ मुझे लगता है मेरा टाइम हो चुका। मैं ये मंच प्रश्न उत्तर के लिए खुला करना चाहती हूँ एंड मेरे 2 शब्द को आप सब ने इतना सहृदय विनम्र भाव से सुना, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ।
थैंक यू शीतल जी, ये जादुई योग से के बारे में हमें अवगत कराया, और कैसे हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को, अनुभूतियों को कैसे हम फील करें, इकट्ठा करें, और अपना प्रफुल्ल मन से अपना हर कार्य करें। तो बहुत ही अच्छा लगा इस जादुई योग के बारे में सुन के। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रजवी को। डॉक्टर रजवी, आप हैं? डॉक्टर रजवी इज विद अस। डॉक्टर भारती, डॉक्टर रजवी हैज इज देयर? Yeah, I'm very much here. Yeah. Okay, welcome, Dr. Rajvi. So I invite Dr. Rajvi, madam, to conclude this session and tell us something about what she has gained about this Jadui Yoga. So I would just like to thank Sheetal ji. She started off her on a personal journey of how she got into this deep subject, and she referred well about the entire stress generation that it is becoming. Well, everybody had stress. Arjuna also had stress, but I think we perceive stress very strongly, and therefore we experience stress. And then she talked about how the subject of yoga, the Ashtanga Yoga of Patanjali, can, with a steady body and mind, which is essential to get into the Antaranga sadhana of Pratyahara Dharana and Dhyana. So she led it through it smoothly. And then, of course, how the scattered mind, the Shipta Vikshipta mind, which is oscillating, which is getting all kinds of thoughts, can become an Ekagra Chitta, an Ekagra mind. And once it becomes Ekagra, you are one with yourself, you're one with your surroundings. And if you're one with everything around you, there is no stress, there is no distress, and I guess one is de-stress. So thank you for introducing different paths of yoga, different ways of getting, the experience of union with oneself, with one's surroundings, with one nature, and learning to respect every being around. So thank you for taking time to explain to us. So, namaskar. My pleasure, ma'am. Yeah, thank you, Sheila. And Yeah. now, if there are any questions, please you can type in the chat box. We can quickly take up a few questions. शीतल जी, बहुत ही अच्छा। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए तब तक आई जस्ट वांटेड टू से few things which you said, very very apt it was. See, today IQ सबकी जगह पे है, सबको IQ है, but emotional quotient is very very lacking everywhere it is. And it is very important that the relationship which you are dealing day to day in your house also, we are very impatient, we are not accepting the person as it is. If you start meditation in whichever way, meditation, different ways you can, Correct. slowly you will realize. See, I'm not saying the people will immediately change and they'll be very sadhu, it will be very good, they will never be, it will happen. See, you may get little angry in case suppose something happens, but that quickly that will rectify. You will understand that, oh no, this was, I have to accept this as it is. So ये जो है ना, ज्ञानेश्वरी में जो आपने बोला, आत्म नित्य नवी, that every day new things, every day you start feeling new things, which was very very happiness. I really like that. And ये आपने ये दो बताया, तुकाराम महाराज का जो बोला बताया आपने, मन करारे प्रसन्न. See, look at this, how many thousands and thousands of years back, the person Tukaram Maharaj, like Siddha Purush, was not even educated also. But see, his Yes. Odis and his Abhangas, where he's written every day-to-day life का लिखा है कि ये And कैसे that's why it करना is है. attracting the modern day psychology also. Yes. Um, See, president आज आता है, president एक साल के बाद जाता है, you don't even remember. But these Yes. people, Abhangas, Tukarams, generation to generation it is going. And they're completely And that will new stay way forever. And that will stay forever. क्योंकि ये Yes. सब में जो इन सब में ज्ञान है ना, वो चिरंतन है, वो कहीं जाने वाला नहीं है. That won't diminish. That will stay forever. या. आणि दुसरा आपने जो बोला की तुझं आहे तुझं पाशी परंतु चुकलाशी.
सो तुम्हारे पास ही है सब कुछ, क्योंकि हम जो है दे से कि वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गॉड. सी वी आर नॉट different, we are part and True. parcel. Like suppose if you take a god is suppose a sea, and we are just one drop of that sea. So sea और drop of sea में same features होते हैं. उसी में भी उसी प्यास बुझाने की ताकत होती है, उसी में आग को बुझाने की भी ताकत होती है, सब कुछ होता है वो. लेकिन आप वो ड्रॉप हो और भगवान जो ओशन है, तो ये जो ड्रॉप को भी पता चलना चाहिए. सो तुझा आहे तुझं पाशी पर तू चुकलाशी, मुझे तुमको मालूम ही नहीं तुम्हारे पापास क्या है. तो Exactly. उसको आपने अगर सपोज ये ध्यान धारणा सिद्धि इस तरीके से ये कुछ भी नहीं किया, तो भी इफ यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ every Exactly. day, that is also going to be a very huge difference. And as you said, 50 to 60 thoughts आते हैं, और ये सब में कचरा है. मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कचरा अगर तुम्हारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे भी अगर सपोज तुमने अननेसेसरी चीजें रखी, तो वो स्लो डाउन होती है सिस्टम. तो तुम्हारी True. सिस्टम कितनी स्लो डाउन होगी, तो आपने वो डेली बेसिस पे निकालना चाहिए, उसको रिसाइकल बिन से भी निकालना चाहिए. Then only your system Yeah, is there is going a to very work. relevant question, very relevant question, madam, in the chat box from Varsha ji. Yes. Saying it was a very nice session. We understand the importance of yoga and meditation, but it is very difficult for us to convince our kids to follow it. So should we leave it and let kids realize by themselves, or is there anything we can do to convince them, as it is very much needed for coming generations? Correct. Yes. Very good question. Very good question. Very relevant also for this age. What can we do? वर्षा जी एंड सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण प्रिय होते हैं, यानी किड्स लाइक टू फॉलो यू. दे वोंट लिसन टू यू राइट नाउ, बट दे आर सीइंग यू थ्रू सेवरल आईज. यानी कि आप कौन से वे में कब कैसे रिएक्ट करते हैं ये वो टैप करते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आपको अप्लाई करना है वो खुद पे अप्लाई करिए. ज्ञानेश्वरी भगवत गीता ये सेल्फ एम्पावरमेंट के ग्रंथाज है, ये सेल्फ एक्सपीरियंस के ग्रंथाज है. इसमें एप्लीकेशन जो भी रहेगा वो खुद पे रहेगा. आप में जो बदलाव आते हैं, आप में जो चेंजेस आते हैं, वो देख के वर्ल्ड विल कम टू यू एंड आस्क व्हाट यू आर डूइंग. Ma'am, please let us know what you are doing so that you have become so much cooler, so much calmer. आपका जो ऑरा होता है आजू बाजू का वो भी चेंज होता है. एंड ट्रस्ट मी, दैट चेंजेस फॉर श्योर, इट चेंजेस. आपके जो वेव्स उठते हैं मन में वो सामने वाले को आकर्षित करते हैं. वो वेव्स अगर कूलर है तभी वो वहां तक पहुंचेंगे. आप अगर गुस्से में हो, आपके बच्चे आपको भांप लेते हैं, वो दूसरे दूसरे रूम में जाना शुरू कर देते हैं ना, तब समझ लीजिए आपका टेम्पर हाइज हो चुका है. तो बट किड्स फॉलो यू, they will not listen to you right now. If they listen, very good, but if they don't listen, just don't push them. It's okay, just leave the situation. They will come back to you very soon. They will come back to you because ये ऐसा गाइडलाइन है, ये ऐसा गाइड करने वाला पाथ है कि इसको छोड़ के चिरंतन, इसको छोड़ के एवर लास्टिंग करने वाला कुछ है ही नहीं. देयर इज नथिंग. सारा टेम्पररी टेम्पररी खुशियों में हमें जो चलने वाली खुशी है, निरंतर चलने वाली खुशी है, जिससे ही हमको सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है, वो हमारे पास केवल इसी मार्ग से है. So, thank you, Sheetal ji. It was a wonderful session with you. And in future also, we'll be keeping connected with everyone, all of you, and we'll continue further also with this transformative journey. We have sessions of self-empowerment program every month. This is an online module conducted by Indian Fertility Society. And I hope we'll all connect together and for the next session of this self-transformative journey. So thank you once again. And with this, we conclude this session. Thank you. Thank you. So much. Okay.